Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma, faculty of Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss data representation, chapter 2 of class 11. Now, introduction of. As you know, a computer is a system of hardware that perform arithmetic operation, manipulates data and makes decision. Students, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है. ओके, कंप्यूटर टेक्स इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट एंड given a particular output. In digital system like computers, the quantity are represented by symbols called digits. जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है सिस्टम के अंदर, सिस्टम नोस बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल्स में. उन सिंबल्स को बोलते हैं डिजिट्स. Many number systems are in use in digital technologies that represent the digit in various forms. The most common are the decimal, binary, octal and hexadecimal number system. Now we will discuss one by one. Students, what is digital number system? In digital representation, various number systems are used. The most common number system used are decimal, binary, octal and hexadecimal system. Now first is decimal number system. The decimal number system is composed of 10 numbers or symbol, that is this system is called decimal system. In decimal number system कितने नंबर यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स? 10 नंबर्स यूज करेंगे और इसका बेस कितना होगा? 10. These 10 symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Using these symbols as digit of a number, we can express any quantity. The decimal system also called the base 10 system because it has 10 digit. क्यों बोलेंगे इसको base 10? क्योंकि इसमें कितनी डिजिट यूज हो रही है? 10. 0 to 9 मीन्स कितनी डिजिट हो गई? 10 डिजिट. Now second is binary number system. In the binary number system, there are only two symbols or possible digit values 0 and 1. Student, you know सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है? ओनली मशीन लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज में कौन सी डिजिट यूज होती है? ओनली 2 डिजिट यूज होती है, 0 and 1, ऑफ एंड ऑन. तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती है वो सब किस पे वर्क करती है? ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम पे, 0 and 1 पे. करंट फ्लो होगा तो 1 मतलब करंट पास हो रहा है तो 1 डिजिट एंड करंट ऑफ है तो 0 डिजिट पास करेंगे. Even so, this base 2 system can be used to represent any quantity that can be represented in decimal or other number system. Now third is octal number system. The octal number system is a very important in digital computer work. The octal number system has a base of 8. तो octal number system का base कितना है? 8. Meaning that it has 8 unique symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. और octal number system में कितने डिजिट यूज करेंगे? 7 डिजिट, 8 digits, sorry, 0 to 7. Thus each digit of an octal number can have any value from 0 to 7. तो octal number system में जितनी भी values होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? सब 0 to 7 में. Okay. Now last is hexadecimal number system. The hexadecimal number system use base 16. तो hexadecimal number system में base के यूज करेंगे आप? 16. It has 16 possible digit symbols. It use the digit 0 through 9 plus the letter A, B, C, D, E and F as the 16 digit symbols. स्टूडेंट आप बोलेंगे सर 0 to 9 तो ठीक है, उसके बाद में हम 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 भी यूज़ कर सकते हैं. सो स्टूडेंट पर वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा. सपोज नंबर लिखा हुआ है 911 तो आप उसको 911 बोलेंगे या 911 बोलेंगे? तो वो कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? लेटर्स. सपोज ए है मीन्स अंडरस्टूड है कि ए को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? 10 से.
बी को किससे करें 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से और एफ को 15 से। तो ये अब अंडरस्टूड हो जाएगा कि अगर ए लिखा हुआ है तो मीन्स वहाँ पर क्या है 10। अगर यहाँ हम लेटर्स यूज़ नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि 9 के बाद में जो आप डिजिट लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 913, तो वो 913 है या 913 है, तो इससे ये वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो गई, ओवरकम हो गई। नेक्स्ट नंबर कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, वो देखते हैं। नंबर कन्वर्जन इन अ डिजिटल नंबर सिस्टम 3 or 4 of these number system may be in use at the same time, so that an understanding of the system operation require the ability to convert from one number to another. Now first convert decimal to binary conversion. अब फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट टेक एग्जांपल, कन्वर्ट 25 डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ये 25 जो है ये किसमें, ये डेसिमल नंबर है और इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में। आप जानते हैं बाइनरी नंबर किस फॉर्म में होता है, ओनली 0-1 फॉर्म में। तो देखो हम इसके लिए डिवाइड रूल यूज करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे 25, और 25 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से। 25 क्या है, डेसिमल नंबर है एंड 2 इज अ बाइनरी नंबर। तो अब सबसे पहले आपने 25 लिखा और 25 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो जब आप 25 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 12 टाइम। तो जो 12 आया वो तो आपको यहाँ लिखना है। अब रिमाइंडर कितना है, 1। तो जो रिमाइंडर, जैसे 25 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रिमाइंडर आ गया, आपने इसको यहाँ लिख दिया। अगेन आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 6 टाइम, और रिमाइंडर कितना हुआ, 0। तो सेकंड रिमाइंडर आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिखना है। देन फिर आपने डिवाइड किया 6 को 2 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 3 टाइम, और रिमाइंडर कितना है, 0। तो थर्ड रिमाइंडर आपने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे 0। देन फिर 3 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो जैसे आपने 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर कितना है, 1, फोर्थ रिमाइंडर, वो आपने कहाँ लिखा, यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट देखिए आप, यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं होगा, तो लास्ट जो ये 1 है आपका, वो 1 भी आपने कहाँ लिख दिया, 5th एज अ रिमाइंडर की तरह। अब जब आप इसको लिखेंगे तो इसको आप रीड अप करेंगे, तो कैसे करेंगे, डाउन टू अप। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1, 1, 0, 0 एंड 1। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे 25 को डेसिमल नंबर में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आया, 1, 1, 0, 0 एंड 1। तो ये हमारा जो 25 नंबर है, यदि इसको बाइनरी में हम बोलेंगे तो 25 डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, 1, 1, 0, 0, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब इसका जस्ट अपोजिट, अभी हमने क्या था, कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी। देन अब कन्वर्ट होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, जस्ट अपोजिट। तो एक नंबर है, बाइनरी डिजिट में ओनली 2 डिजिट यूज करेंगे, 1 एंड 0। तो कन्वर्ट 1, 1, 0, 0, 1 बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। अब देखो आप सारी डिजिट्स को इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट 1, सेकंड 1, थर्ड 0, फोर्थ 0 एंड लास्ट 1। ये डिजिट्स आपने लिख ली सारी। अब देखो ये जो फर्स्ट डिजिट है 1, आपने एज इट इज यहाँ राइट लिखा, 0 को आपने यहाँ पर, फिर इस 0 को ये 1 एंड ये 1 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, देन उसके बाद में कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर के लिए आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 0। तो फर्स्ट जो नंबर था 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। सेकंड जो नंबर है वो फिर वहाँ क्या लिखोगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो इस तरह से क्या करना है आपको, ऑर्डर में बढ़ते हुए चलना है और पावर भी क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, पर पावर किसके ऊपर होगी, ओनली 2 के ऊपर। तो देखो फर्स्ट बन गया 1 इंटू 2 की पावर 0, सेकंड बन गया 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर बन गया 0 इंटू 2 की पावर 2, देन 1 इंटू 2 की पावर 3 एंड लास्ट में 1 इंटू 2 की पावर 4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, आप जानते हैं स्टूडेंट कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो रिजल्ट क्या होता है, 1। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 1। सेकेंड 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, तो 0 इंटू 2, देन 0 इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 0 इंटू 4, 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 2 4 और 4 2 8, तो ये कितना हो गया 8। एंड फाइनली 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया 16।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो यहाँ पर 0, देन फिर 0, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16। अब आप इसको काउंट कर लेंगे 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16 मीन्स 25। तो ये जो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को आप जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में तो रिजल्ट क्या होगा 25। तो इसका रिजल्ट क्या है आपका 25। तो ये नंबर है बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर। तो इस बाइनरी नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल नंबर में। ओके, नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन इज डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी हमने देखा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, नेक्स्ट क्या है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। यदि आपको कोई भी एक सिंगल कन्वर्जन अगर समझ में आता है तो बाकी सारे कन्वर्जन आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो नेक्स्ट जो कन्वर्जन आ गया ये आ गया डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हमें कन्वर्ट करना है 214 डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो जो 214 है, अब जब हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था तो डिजिट जो डेसिमल नंबर था वो कहाँ था, यहाँ पर, और हमने डिवाइड किससे किया था 2 से, क्योंकि वो कौन सा कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी। अब सेम वही चीज़ है, डेसिमल टू बाइनरी की जगह कौन सा कन्वर्जन आ गया यहाँ पे ऑक्टल कन्वर्जन। देन 214 को हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से। 214 को जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने टाइम डिवाइड हुआ 26 टाइम, और रिमाइंडर कितना है 6। तो जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को आप कहाँ पर लिखेंगे इस साइड में। तो जो 6 रिमाइंडर है वो आपने कहाँ पर लिखा यहाँ पर, जैसे वहाँ पर हमारा रिमाइंडर था 01010, यहाँ पर रिमाइंडर 6, तो 6 रिमाइंडर यहाँ पर। फिर अगेन 26 को आपने डिवाइड किया 8 से, तो कितने टाइम डिवाइड हुआ 3 टाइम, एंड रिजल्ट जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपने कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 रिमाइंडर यहाँ पर। देन आप लास्ट में कितना है 3 डिवाइड होगा नहीं 8 से, तो एज इट इज़ आप ये यहाँ पर लिख देंगे रिमाइंडर। और जब रीड करेंगे तो कैसे करेंगे टॉप टू डाउन, तो आंसर इज 3 2 6। लास्ट वाले को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड फर्स्ट को बोलते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आप रिमाइंडर को कैसे रीड, जो रिमाइंडर है उसको कैसे रीड करोगे 3 2 एंड 6। तो फाइनली आंसर इज 214 डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू octal number 326. The answer is 326. Okay. Now next, octal to decimal conversion. पहले करा था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सेम एज इट इज हम क्या कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल वही है, सिर्फ डिजिट क्या आ गई है ऑक्टल। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी एन एग्जाम्पल, कन्वर्ट 172 ऑक्टल टू डेसिमल नंबर। तो 172 जो ऑक्टल नंबर है उसको हमें किसमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि 172 ये कौन सा नंबर है ऑक्टल नंबर है। अगर सपोज मैं यहाँ लिख देता 192 ऑक्टल टू डेसिमल, तो 192 ऑक्टल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें डिजिट क्या यूज हो रही है 9 192, तो 9 ऑक्टल में तो होती नहीं, ऑक्टल में ओनली कितने डिजिट यूज होती है 0 to 7, तो 172 इज अ ऑक्टल नंबर। अब नाउ कन्वर्ट करना है, सेम वैसे ही कन्वर्ट होगा जैसे हमने वाला किया था, पहले 2 को लिखा, फिर 7 को लिखा और फिर 1 को लिखा। इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। आप बोले सर आपने पहले फर्स्ट से लिखा फिर उधर आपने पावर्स उधर लगाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पावर लगा दें बाद में नंबर लिखें, या पहले नंबर लिख लें फिर देन अगेन उसके बाद में पावर लगाएं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमने नंबर लिखा 2, देन नंबर लिखा 7, देन फिर लिखा 1, उसके बाद में 8 8 8, क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो हमने क्या करना है फिर उसके बाद में 8 8 एंड 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड 8 की पावर 2, ठीक है। 8 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया 2। 8 की पावर 1 कितना होगा 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 56। 8 की पावर 2 कितनी होगी 8 इंटू 8 64, एंड 64 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। देन एड ऑल डिजिट्स 2 प्लस 56 प्लस 64, द आंसर इज 122। तो नंबर कन्वर्ट हो गया 172 ऑक्टल नंबर कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर, रिजल्ट इज 122। तो ऑक्टल नंबर जो है 172 उसको जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा 122। ओके, नाउ नेक्स्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन।
अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यस, नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। द कन्वर्जन फ्रॉम octal to binary is performed by converting each octal digit to its 3-bit binary equivalent. अब देखो octal digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। बाइनरी डिजिट में चेंज किया, 0 की बाइनरी डिजिट होगी 0 0 0 ट्रिपल 0, 1 की बाइनरी डिजिट है 0 0 1, 2 की बाइनरी डिजिट 0 1 0, 3 की बाइनरी डिजिट 0 1 1, 4 की बाइनरी डिजिट 1 0 0, 5 की बाइनरी डिजिट 1 0 1, 6 की 1 1 0 एंड 7 की 1 1 एंड 1। कन्वर्ट 472 टू बाइनरी नंबर। आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है 472 नंबर जो है ऑक्टल नंबर है, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर में। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 4 देन राइट 7 एंड लास्ट में 2। 4 की बाइनरी डिजिट 1 0 0, तो जो 4 की बाइनरी डिजिट है 1 0 0 लिखना है यहाँ पे। 7 की बाइनरी डिजिट 1 1 1 एंड 2 की बाइनरी डिजिट 0 1 0 एंड फाइनली आपको क्या करना है, सबको एक साथ लिखना है 1 0 0 1 1 1 एंड 0 1 0। ठीक है, तो कन्वर्ट हो गया 472 नंबर बाइनरी नंबर में। ओके, नेक्स्ट इज बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, जस्ट अपोजिट है। पहले था ऑक्टल टू बाइनरी नंबर, देन बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। कन्वर्ट 1 0 0 1 1 1 0 1 0 बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। तो सबसे पहले आपको करना है 3 3 की ग्रुपिंग करनी है और लास्ट से, तो सबसे पहले ग्रुपिंग होगी 0 1 0 की, तो 0 1 0 ग्रुपिंग हो गया 3 का, देन 1 1 1 ये ग्रुप हो गया एंड फाइनली लास्ट में 0 0 1, तो ये 0 0 1 एक ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप 3 का, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। सपोज यहाँ पे लास्ट जो ग्रुप है वो क्या था, 1 0 एंड 0। अगर यहाँ ओनली 0 ही होता देन फिर प्रॉब्लम आती है, सर ग्रुपिंग कैसे करें 3 की, कि यहाँ पे तो ओनली सिंगल डिजिट है, तो आप क्या करते हैं फिर लास्ट में 0 एंड 0 लगा देते। तो अगर आपकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो फाइनली आपको क्या करना है, लास्ट में 0 लगाना है। सपोज 7 है, 7 के आगे आपने क्या लिखा 0, तो वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई। अगर 7 के पीछे अगर आपने क्या कर दिया, लास्ट में 0 लगा दिया, तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 70 हो गई। तो अगर सपोज 3 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, 1 है रिमाइंडर 2 है, तो आप क्या करोगे, आगे 0 पुट करना है। तो देखो 0 1 0 2 की बाइनरी, 1 1 1 7 की बाइनरी एंड 1 0 0 किसकी बाइनरी है, 4 की बाइनरी। तो ये बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया 472। अगर ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 472। नेक्स्ट डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। हेक्स मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर। अब हमें डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्स नंबर में। हमने कौन सा देख लिया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड फाइनली अब देख रहे हैं डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। सेम पैटर्न है, कन्वर्ट 3 4 7 9 डेसिमल टू हेक्स कन्वर्जन। 3 4 7 9 आपने लिखा, डिवाइड करना है 16 से, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 217 टाइम डिवाइड हुआ, 217 और रिमाइंडर कितना है 7, तो रिमाइंडर आपने 7 यहाँ पर लिखा। देन 217 को फिर आपने 16 से क्या किया, डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 13 टाइम और रिमाइंडर कितना है 9, तो वो जो रिमाइंडर है वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर। अब लास्ट देखें 13 है, 13 को आपको किससे डिवाइड करना है, 16 से, होगा डिवाइड, नहीं होगा। देन जो रिमाइंडर है सबसे लास्ट का, वो लास्ट का आप रिमाइंडर आपने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे। तो फर्स्ट रिमाइंडर, देन सेकेंड रिमाइंडर एंड थर्ड रिमाइंडर। अब आपने आंसर में लिख दिया 7 9 13, तो ये कंफ्यूजन हो गया कि ये इसको बोलेंगे 7913 या 7913, कंफ्यूजन हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेटर का। तो हम 13 को क्या बोलेंगे, डी, 10 को ए, ठीक है, 11 को बी, इस तरह से 13 किस पे आएगा, डी पे। तो हमारा जो रिजल्ट होगा हम क्या लिखेंगे, D9 7 लिखना कैसे है, डाउन टू अप, तो आंसर इज D9 7। अब D से हमें क्लियर हो गया कि D इज 13, तो आंसर है 13 9 एंड 7। तो कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट 379 डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर।
हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। कन्वर्ट 1a, a मीन्स 10, 1a हेक्स नंबर टू डेसिमल। अभी देखो 1a 16, बेस 16 लिखा हुआ है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, और इससे भी फाइंड आउट होता है कि a है तो हेक्साडेसिमल नंबर। सपोज यहाँ पे लिखा होता 17, तो आपको कैसे फाइंड आउट होता है कि 17 ऑक्टल नंबर है, डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है, तो आप किसको देखना है आपको, बेस को। तो बेस कितना है 16, तो 1a 16, बेस कितना है 16, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 10 आपने कैसे लिखा यहाँ पर, और 1 आपको लिखना है इसमें, मल्टीप्लाई करोगे 16 से, 16 और पावर जैसे हमने लिखा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 जब बाइनरी में कन्वर्ट किया था, ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। अब 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे 16 की पावर 0 एंड 16 की पावर 1। 16 की पावर 0 मीन्स 1, 10 मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट इज 10, 16 की पावर 1 मीन्स 16 और 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 16 रिजल्ट इज 16। ऐड करेंगे 16 प्लस 10 26। तो 1a हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आंसर इज 26। नेक्स्ट बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन, हेक्स मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर। तो ऑक्टल नंबर में पेयरिंग कितनी की है, 3 की, ग्रुपिंग जो किया था 3 का किया था ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में ग्रुपिंग कितनी करनी है, 4 की ग्रुपिंग करनी है। कन्वर्ट 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ग्रुपिंग कहाँ से करोगे, लास्ट से फर्स्ट करना है, इस तरह से चलना है। सबसे पहले 4 की ग्रुपिंग होगी लास्ट से, तो 0 1 0 1 ये ग्रुपिंग हो गई फर्स्ट वाली। देन फिर ग्रुपिंग करोगे 1 1 0 1, तो ये ग्रुपिंग हो गई सेकंड, 1 1 0 1 एंड फाइनली लास्ट में आपके पास ओनली रिमेनिंग कितनी डिजिट्स हैं, ओनली 2 डिजिट्स 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 अभी कितनी हो रही है 2, हमें कितना करना है 4 की ग्रुपिंग करना है, तो आप आगे क्या करेंगे 2 0 और लगाएंगे 0 0 1 0। ओके 1 0 1 0 बाइनरी होती है 10 की, 1 0 1 1 बाइनरी होती है 11 की एंड 0 0 1 0 बाइनरी किसकी होती है 2 की। अगर आपने रिजल्ट अपने आंसर लिखा 2 1 1 1 0 तो आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि जो 1 1 है ये 11, ये जो आपने लिखा है उसको आप बोलोगे 1 1 या 11। आप आंसर लिख रहे हो 2 1 1 1 0, तो 1 1 इज 11 या 1 1 है वो क्या है, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे B और यहाँ पे कौन सा लेटर यूज किया है A। तो आपका आंसर क्या होगा 2B एंड A, आंसर इज 2BA। तो कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन में। ओके नेक्स्ट इज हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन। कन्वर्ट 9F टू हेक्स नंबर टू बाइनरी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 9 नंबर, देन F और लास्ट में 2, ग्रुपिंग करनी है 4 4 की। तो 2 की बाइनरी कितनी होगी 0 0 1 0, ठीक है। F मीन्स 15, 15 की बाइनरी होगी 1 1 1 एंड 1, और फाइनली 9 की जो बाइनरी है वो क्या होगी 1 0 0 एंड 1, और लास्ट में आपको क्या करना है इसको एक साथ कंप्लीट करके लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 1 एंड 0 0 1 एंड 0। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट है बाइनरी एडिशन, ठीक है। आपने एडिशन किया है मैथ्स में, पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एडिशन है, वो कैसे, देयर आर 5 बेसिक केसेस फॉर बाइनरी एडिशन। जब भी आप बाइनरी एडिशन करोगे तो 5 केस आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला केस जो है 0 प्लस 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, पर 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 0, ना तो 2 आएगा ना 10 आएगा। आप इसको ये नहीं बोलोगे सर 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, मैथ्स नहीं है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम ओनली कितने डिजिट लेगा 0 एंड 1। तो जब भी आप 1 प्लस 1 ऐड करोगे तो ना तो आप 2 लिखोगे ना आप 10 लिखोगे, ये क्या है इसको बोलेंगे 1 0, 0 है और कैरी क्या है 1 है। केस 5 में 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 1, इसको ना 11 बोलेंगे ना आंसर आएगा 3, इसको बोलेंगे 1 1, ये 1 और कैरी 1। अब देखते हैं, लेट
लेट्स टेक एन एग्जांपल, एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर 11100 प्लस 11010। फर्स्ट नंबर लिखा मैंने 11100 एंड सेकंड नंबर क्या है 11010। अब देखो फर्स्ट जो है 00, तो देखो केस फर्स्ट लगेगा 00, रिजल्ट क्या आएगा 0। ओके, नाउ सेकंड 01, केस 2 01, जब 0 और 1 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 1, तो 1 यहाँ पर। देन 10, केस 3 10 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। अब 11, तो 11 जो है उसका रिजल्ट क्या है 10, तो 10 तो एक साथ आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो सबसे पहले जो 0 है 0 तो यहाँ लिखना है, और कैरी 1, कैरी कहाँ जाएगी यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या सिचुएशन हुई है 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो केस 5 1 प्लस 1 प्लस 1, रिजल्ट इज 1 1 नॉट 11, ठीक है 1 1। तो जो 1 है लास्ट वाला जो 1 है वो आपने यहाँ लिखा, और ये जो 1 है ये कैरी है, तो आगे कोई डिजिट है नहीं, तो एज इट इज 1 क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो रूल जो ये केसेस हैं 5 केसेस, ये आपको लर्न होने चाहिए अच्छी तरह से। 0 + 0 = 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। ये जो 3 रूल्स हैं ये तो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, कि सबको पता है कि 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1 और 1 + 0 1 है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ये 2 केसेस हैं। 1 + 1 स्टूडेंट क्या करते हैं, तो उसको बोलेंगे 10, या फिर इसको रीड कर इसको लिखेंगे 1 + 1 2, नहीं ना, तो ये 10 है ना 2 है, ये क्या है 1 + 1 1 एंड 0। इसी तरह केस 5 में 1 + 1 + 1 मीन्स 11 नहीं है, और ना ही 3 लिखना है, क्या लिखोगे 1 एंड 1, ये 1 लास्ट वाली जो डिजिट है वो लिखते हैं, और ये जो सेकंड जो डिजिट है वो जाती है कैरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ASCII code, ASCII code. ASCII is a 7-bit character set containing 128 characters. It contains the number from 0 to 9, the upper and lower case English letter from A to Z, and some special character. ASCII code means particular computer क्या है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है, मशीन लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में। तो डिफरेंट कन्वर्जन है, इनको हम यूज़ करके अपने कोड डिफरेंट कोड में चेंज करते हैं। तो ये ASCII कोड है। सेकेंड होता है ISCII कोड, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इज अ कोडिंग स्कीम फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरियस राइटिंग सिस्टम of India. It encode the main Indic script and a Roman translation. The supported script are Assami, Bengali, Devanagari, Gujarati, Gurmukhi, Kannada, Malayalam, Oriya, Tamil and Telugu. तो ISCII कोड है, ये इन लैंग्वेजेस में आप चेंज कर सकते हो, इन लैंग्वेजेस को इस कोड के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। और लास्ट में है यूनिकोड। यूनिकोड प्रोवाइड है यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर्स। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको क्या होगा, एक स्पेशल, ये क्या होगा, एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड कर देगा, यूनिक नंबर होगा वो प्रोवाइड करता है इस यूनिकोड के अंदर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।